Hello friends, welcome once again. Yesterday I had uploaded a video on liveliness. I'm sure you would have watched, if not already, please watch it. The definition of liveliness we saw, it is the capacity of an individual to keep himself buoyant when meeting problems and bring about a cheerful atmosphere. And under this definition, we saw two examples. One is an example of ping pong ball where you are able to bounce back when you meet obstacles and setbacks. And we had taken the example of Bhuvan and Kabir Khan. And I questioned you, are you like a ping pong when you encounter obstacles and setbacks? Do you show the capacity to bounce back? And I've suggested you look at your life plan and see various incidents in life where demonstrate that capability in various domains, whether it's physical, intellectual, emotional, or the value dimension to bounce back. And also in various other domains of life, that is family life, personal life, academic life, social life, and professional life, and the spiritual life, if you are able to bounce back. And the second attitude towards life is like a gober, which is incapable of bouncing back. तो डेफिनेटली हमने ये देखा था कि भुवन एंड कबीर खान could bounce back, but the question is in the SSB not many of the candidates are able to bounce back, because anyway the clearance rate in the SSB is only 3.6 as communicated by none other than the ex-commandant selection center South. So we understand, taking that example as the correct, if 3.6% people are getting recommended from the SSB, that means rest about 96.4% people are nothing but gober, inability to bounce back. ये अपने comfort zone में फंसे हुए हैं, एंड किसी चीज़ को ऑब्स्टिकल्स आता है, तैयारी में कोई प्रिपरेशन आता है, वेदर लाइफ हो या SSB हो, ये उस प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंकिंग करके, एनालिसिस पैरालिसिस करके, हाइपरक्रिटिकल एटीट्यूड में आके सर्प दृष्टि में फंस जाते, दलदल में फंस जाते, उस दलदल से बाहर नहीं निकलते. और वो अगर बाहर नहीं निकलते तो कोर क्वालिटी हाइड करने से आपके अंदर पिंग पोंग कैपेबिलिटी नहीं आएगा. यू विल सिंपली रिमेन ए गोबर. सो यू हैव टू चेंज दैट माइंडसेट. तो उसी सिलसिले में मुझे एक लड़की का फीडबैक आया है. उस लड़की का नाम है विमुला दिव्या. In fact, this girl has not attended the SSB classes, but she has attended number of almost all the gap analysis workshop जो भी मैंने online में किया. This girl has been there, and this girl I found is a very very sharp and very determined girl to push herself. So somehow I am a big fan of this girl, और मैं इस लड़की के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे कमेंट्स डालती है. तो इसने लाइवलीनेस के ऊपर एक कमेंट कल डाला है. She must be 22-23 years old होगी शायद. I don't know what's her age. I've seen her only in the FOCP online free gap analysis workshop, and she has not attended any classes. So I thought I'll share her Vimula Divya का क्या बोलते हैं feedback on yesterday's class on liveliness. So very nice feedback, and I think what she has said makes all of us think कि कुछ तो सच है उसकी बात में, एंड आई थिंक वी नीड टू करेक्ट इट. सो लेट अस सी विमला दिव्या. आई थिंक शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद जहाँ तक मुझे याद है. So let's see the feedback by her. She says, as a child, we are always like a ping pong ball who can bounce back very easily. You know, as a child, when we start walking, we never think of shortcut or the best way to walk perfectly. Not knowing imperfection makes us perfect. Wow. है ना? We love the process. We fall, we cry, we forget, we smile, we walk again. बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ना. एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू होता है वो सीधा नहीं चल पाता है. ही फॉल्स डाउन, क्राई, चोट लगती है, मम्मी आके उसको इनकरेज करती है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है. एंड वी वर लाइक ए पिंग पोंग बॉल, नथिंग कुड स्टॉप अस. दैट वॉज आवर इनेट क्वालिटी. सो वेरी नाइसली रिटन. एज अ चाइल्ड वी वर ऑल लाइक ए पिंग पोंग बॉल हु कैन बाउंस बैक वेरी ईजिली. As a child, when we start walking, we never think of shortcut or the best way to walk perfectly. Not knowing imperfection makes it perfect. What a beautiful line. मतलब not knowing our imperfection is what makes it perfect and differentiates each other from all others. है ना. वी लव द प्रोसेस. यस, वी वर प्रोसेस ओरिएंटेड. हमें दौड़ने की जल्दबाजी नहीं होती थी. पहले गिर गिर के सीखते थे. साइकिल भी हम गिर गिर के सीखा था. कार भी हमने बहुत टाइम के बाद सीखा था. अचानक स्विच दबा के नहीं सीखा था. वी लव द प्रोसेस. कितना बढ़िया लिखा है. वी लव द प्रोसेस. वी फॉल, वी क्राई, वी फॉरगेट, वी स्माइल, वी वॉक अगेन. ब्यूटिफुल है ना. नेक्स्ट ही राइट्स, as an adult, so that was bachpan ka. Now as an adult, we seek role models, we worry, we look for shortcuts, we cry a lot, including on the thought of falling.
Yeah, this is the change in attitude. As a child, we were like a ping pong. अभी हमको बड़ा डर लगता है. As an adult, we seek role model. We worry. We look for shortcuts. Yes, we look for shortcuts as adult. We worry. है ना. We look for role models. We cry a lot, including on the thought of falling. सोच के ही डर जाते थे कि गिर जाएंगे. Fear of failure she is talking about. We fear. We don't forget. We hate process. We hate process. We hate process, whereas I'm saying be process oriented. Look at what a beautiful feedback she has written. We hate process, even though there are major changes accountable, but as a child we were more lively than as an adult. मतलब as a child we were more lively, we were more resilient to all those setbacks and obstacles. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भूल जाते थे, सड़ा हुआ आलू नहीं पकड़ के रखते थे. So we were, as a child we were more lively. क्या जबरदस्त फीडबैक लिखा है. एज अ चाइल्ड वी वर मोर लाइवली देन एज एन एडल्ट. आई एम नाउ इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ इन सम ऑफ द एरियाज. प्लीज कीप गाइडिंग अस इन द सेम वे एज यू ऑलवेज डू. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद सर. Vimla Divya, I am so impressed with this girl, and because I think I look for her comments in the feedback. So Vimla Divya, for you the the SSB training, I make it free for you. You only have to pay the fees that the interviewing officer charges from me. Rest for me, I'll train you free, because I will absolutely it'll be my pleasure to train you, because what an amazing girl you are. Wherever you are, I don't know Divya what's your background, but you're an amazing girl, and I offer you 100% discount as far as my part is concerned for the interview. Whatever he charges, I'll request you to pay that money, and the entire SSB training for you is free, because I'm so inspired by you're a young girl. I wish I was like you when I was young. You are a ping pong ball. God bless you, Divya. So that's about feedback from Vimla Divya. And Vimla Divya के बात को अगर समझना है तो I'll give you an example. Let us look at this jar. This jar has got something to eat, and there is a rat sitting inside. So the rat every day jumps, eats comfortably, and runs away. Now the rat has become so used to eating this that उसने खा खा के नीचे ही हो गया, वो बिल्कुल नीचे ही चला गया. Now the problem with this is, now the rat cannot come out. आपको समझ में आया क्या बोला. हम भी जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, बचपन से लेके एडल्ट में भी. एज एन एडल्ट ऑल्सो आई मेक मिस्टेक, कि हम कुछ ऐसे आदतों में फंस गए हैं इस चूहे की तरह, कि हमने इसके ऊपर शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा और हम निकल भी लेते थे, खा के जंप यहाँ तक भी निकल लेते थे, यहाँ तक भी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होता था बट निकल लेते थे. लेकिन अभी प्रॉब्लम आ गया, अभी यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से जंप नहीं लग रहा. नाउ वंस यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, now you cannot come out. Now you are at the mercy of God and maybe your employer, और आप एक छोटे मोटे चीज़ में फंस जाओगे, और इसके अंदर से अब वो they will give you peanuts and you have no option but to have peanuts only. इसका मतलब है when you get too much into comfort zone and आपका comfort zone expand हो जाता है, एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे उस comfort zone को छोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा. And that is a very very dangerous, and many professionals today get into this comfort zone. IT में चले जाते हैं या आर्मी में चले जाते हैं. कुछ लोग आर्मी में आ जाते हैं, उनको एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन अब आदत ऐसी लग गई कि उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता. No, I have seen many of my officers, some seniors also, they are not able to leave army because उनको समझ में नहीं आता बाहर आके करना क्या है, because they are not upgraded themselves. You have to constantly upgrade themselves. Unless you upgrade yourself for the next level, you will fall short. एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल पोटेंशियल में वो हमेशा एक गैप रहेगा. तो ये चूहा आज एक ट्रैप में फंस गया है. सो टुडे मेनी बॉयज एंड गर्ल्स विथ हुम आई एम इंटरैक्टिंग एज पार्ट ऑफ द एसएसबी ट्रेनिंग एंड ऑल्सो सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आते हैं, मुझे लगता है कि वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विथ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, शॉर्टकट टू सक्सेस, कि इट बिकम्स ए लॉन्ग टर्म ट्रैप. वो आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हो कि उससे आप बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नाउ योर एबिलिटी टू जंप आउट ऑफ इट इज रिड्यूस, एंड एज टाइम passes, your age increases, your eligibility criteria becomes more complex, and your ability to respond to life becomes less, because you get new responsibilities get added.
आज आप स्टूडेंट हो, 12th वाले हो, कल को आप ग्रेजुएट बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, मैरिड हस्बैंड वाइफ बन जाओगे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, लेकिन आपके कंफर्ट जोन में फंस गए. सो दीज आर दी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स. इसके बारे में जब हम सेल्फ मैनेजमेंट में आएंगे, हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर काम करते हैं, मतलब पूरा लाइफ लाइन में खोद के कहाँ पे गलती हुआ और उसको ठीक करने का. सो प्लीज़ आपके अपने तैयारी में, वेदर इट इज़ SSB प्रिपरेशन ऑन लाइफ, प्लीज़ मेक श्योर कहीं आप इस तरह के चूहे की तरह तो नहीं फंस गए. मैं लास्ट में कुछ लड़कों के नंबर दूंगा, आप उनसे बात करना कि कैसे दे वर लिटरली इन पेन कि सर ये आपने क्या दिखा दिया. बोलता सर ये पिक्चर दिमाग में फंस गया है, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑल्सो ट्रैप्ड लाइक दिस चूहा. ऑल ऑफ अस आर ट्रैप्ड इनटू, कभी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, कभी प्रोफेशन में फंस जाते हैं, कभी किसी इश्यूज में फंस जाते हैं, एंड सर्कल ऑफ कंसर्न में इस कदर फंस जाते हैं कि हमारा एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है. सो यहाँ पे आपका सर्कल ऑफ कंसर्न ज़्यादा है, सर्कल ऑफ कंसर्न कम है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. लेकिन अगर आपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम नहीं किया, जैसे जैसे ये डिप्लीट होगा खाने का आइटम, आप जब नीचे गहरे में आ जाओगे, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस will reduce because you focus too much on circle of concern because you enjoy pleasure. So ध्यान रखना, ऐसा अगर है तो you are in a trap. If things are coming very easy to you and you are getting comfortable, you are getting trapped into a survival mode. Be it SSB का ट्रेनिंग, अगर SSB में मीठा बोल के आपको 5 days का सिग्नेचर कोर्स करा देते हैं और फट्टा बल्ली करा देते हैं, आपको 2 PGT 2 HGT कर रहे हो, थिंग्स आर कमिंग टू ईजी फॉर यू. डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी हाइड कर दो. वीडियो में एक सर बोलते हैं, कर्नल साहब है, बड़े फेमस कर्नल साहब, बोलते हैं कि अगर कोर क्वालिटी में कोई डेफिशिएंसी हो उसको हाइड कर दो. कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं? फौज के कर्नल साहब हैं, पता नहीं कि फौज के हैं, नेवी के हैं, पता नहीं, वीडियो में भी बुक में भी ऐसे लिखे हुए. नो, यू कैन नॉट बेटा, हाउ कैन यू डू दैट, है ना. इफ थिंग्स आर कमिंग टू ईजी, आपके लाइफ में अगर सब कुछ बहुत आसानी से आपको मिल रहा है, यू आर ऑलरेडी इन कंफर्ट जोन. अगर लाइफ में स्ट्रगल ना हो, यू विल नॉट ग्रो. विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट ग्रो. अगर आप हर जगह में शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, हर जगह एलिवेटर देख रहे हो, रट्टा मार रहे हो, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की जगह में उसको रट्टा मार रहे हो, 2 PGT 2 HGT कर रहे हो, यू आर ट्रैप्ड इनटू अ कंफर्ट जोन. 3.6 इज द क्लियरेंस, आप लोगों को पता है. सो प्लीज मेक श्योर दैट you have to break your comfort zone. You have to break your comfort zone. Don't say कि मेरे पापा गरीब है, मैं गांव से हूँ. You have to break that comfort zone. I have done it for me. I was also 53% in 10th and 12th dropout. लेकिन today what I have done, it's a complete shift from the way I have done. I have broken it. You can also do it, provided you have a mentor who forces you to do it. ये प्यार में ना, नो, प्यार में नहीं होगा. बहुत प्यार वाला ट्रेनिंग हो रहा है SSB का. नो, इट इज़ बिकॉज SSB इज़ अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, और आपको पर्सनालिटी के टूल्स में चढ़ा दिया, इसलिए बहुत ईजी हो गया. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. पर्सनालिटी टूल्स TAT WAT सिग्नेचर कोर्स वगैरह हो जाएगा. कोर क्वालिटी हाइड कर दो, डेड बॉडी का ड्रामा बना दो ना. कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं. आपके वेल विशर्स बोल रहे हैं, लेकिन आपके वेल विशर्स वो नहीं है जो आपको कंफर्ट जोन में डाल के ट्रेनिंग करा रही है. दे हैव टू पुश यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. सो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर पोटेंशियल, अगर आप अपनी खुद की पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे, यू विल लूज इट. ब्रेन, either you use it or you lose it. I compel you to use your potential. मेरा काम आपको गारंटी देना नहीं है कि मेरे पास आने से 100% हो जाओगे, 5 दिन में सिग्नेचर कोर्स करा दूंगा. That's not my job. My job is to show you the deficiency and also show you the potential and kick you so that you use your potential. Else you will lose it. So when you are not using your potential, you are losing it. मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरी बातों से क्या समझ में आया. अगर ये चूहे ने बचपन में ही अगर पोटेंशियल दिखा के जंप मार दिया तो बहुत अच्छा. अब ये पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज द प्रॉब्लम हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन बिफोर. यह भी राही का पहाड़ बन चुका बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एटीट्यूड. अपने दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज, इफ यू डोंट टेक राइट एक्शन एट द राइट टाइम, if you don't take the right action at the right time, you will finish what you have and will not be in a position to come out of that situation. अगर ये चूहा अपनी काबिलियत को राइट समय पे नहीं इस्तेमाल करता तो समय ख़त्म होने के बाद नहीं होगा.
इट इज़ लाइक वो जो मैं A to B to C to D का ट्रपीज़म दिखाता हूँ, अगर आपने सही टाइम पे स्विंग नहीं लिया और सही टाइम पे A to B नहीं छोड़ा और सही टाइम पे C to D में स्विच नहीं किया, तो फिर वो C to D आना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज टाइम के साथ उसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा, इधर आपका भी ऑसिलेशन, और लटक लटक के आप थक जाओगे, देन विल बिकम ए रिडंडेंट पर्सन, यू विल बिकम रिडंडेंट। सो आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है समय रहते। एनडीए इज़ द बेस्ट एंट्री, 10+2 TS इज़ अनदर बेस्ट एंट्री, CDS ये जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपके से एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, आपका मेच्योरिटी बढ़ना चाहिए, इमोशनल मेच्योरिटी, लेकिन वो नहीं बढ़ेगा इफ़ यू आर ट्रैप लाइक दिस चूहा इन योर कंफर्ट जोन। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपका प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता रहेगा, तो सर्विस एंट्री बहुत नीचे हो जाता है बिकॉज यू आर इन अ बिगर कंफर्ट जोन। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये जो मैं दिखा रहा हूँ, और जब एक बार कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकलते, जीवन बिकम्स एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। एक ऐसा लगेगा जैसे हैंड ब्रेक लगा के, बिकॉज आपने क्यों किया, अब आप इससे बाहर ही निकल सकते। ये चाहता है कि कोई और जॉब कर लूँ, कुछ कर लूँ, बट नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज़ नॉट डेवलप्ड हिमसेल्फ। इसने अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, वेदर इट इज़, अगर आईटी में है तो आईटी रिलेटेड, एसएसबी में तो आप 11 बार चले जाओगे, लेकिन अगर वो टीएटी ठीक करते रहोगे तो आप चूहे ही रहोगे। So your ability to bounce back and respond to life will reduce. You are focusing too much on circle of concern. You have to shift your focus from circle of concern to circle of influence. और वो TAT, DAT के W से नहीं होगा. You will lose your ability to take proactive decision. और इसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करना, जो कि मैं बार बार बताता हूँ कि SML में आओगे तो पहला चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, और उसके लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफलाइन एनालिसिस, SWOT analysis, force field analysis, ना असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, सो मच ऑफ इट। आई गिव यू कपल ऑफ नंबर्स, पागल कर देता हूँ उनको अपने बारे में समझ के, और तुम किसी का SD लिख देते हो। नहीं यार, गलत कर रहे हो आप लोग। यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न। पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है, इट शुड बी इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर, पहली बात तो है नहीं, और है भी, इट शुड बी इन अ सर्कल ऑफ कंसर्न। इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ा दो कि कंसर्न अपने आप ही कम हो जाएंगे। तुम साला इस चूहे की तरह अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में रहे और इन्फ्लुएंस को कम करके अब इतना छोटा हो गया कि ये चूहा बाहर ही नहीं आ सकता, बिकॉज मजा लिया इसने, खूब प्लेजर प्रिंसिपल पे चल रहा है। टिकटॉक करते रहो, व्हाट्सअप करते रहो, इट विल नॉट हैपन यार। सो ध्यान रखना भैया कि आप लोग का भी SSB का ट्रेनिंग जो है इस चूहे की तरह बहुत कंफर्टेबल हो रहा, बहुत कंफर्टेबल। देखो कैसी लाइन लगी है। He is, look at this, sir. Sir, if I had core quality, will not SSB catch me? Don't worry, I have not been caught. खुद भी नहीं पकड़ा, मेरे में भी तो कमी है, क्या बात है ना। How will they catch you? I will teach you tips and tricks to crack SSB. ये सब आपको अच्छा लगता है? कोर क्वालिटी हाइड करना अच्छा लगता है? डेड बॉडी का ड्रामा बनाना अच्छा लगता है? A4CP आपको अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मैं तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ने की बात करता हूँ। मैं अनप्लेजेंट ट्रुथ बोल रहा हूँ और ये कंफर्टिंग लाइज बोल रहे हैं। डेड बॉडी का ड्रामा आपको अच्छा लगेगा, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं आपके बिलीफ सिस्टम पे मार रहा हूँ। इन वीडियोस के थ्रू मैं हर दिन एक एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी ये सोच को बदलना है। आप ये सोच नहीं बदलोगे, आप उस चूहे की तरह घूमते रहोगे उस बॉटल के अंदर। सो चूहा बॉटल के अंदर रह के रट्टा मार के, अगर आपको लगता है कि आपका लाइवलीनेस, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाउंस बैक when meeting problems and setbacks, it will improve and you will bring about a cheerful atmosphere around you. It will never happen because you are stuck in a comfort zone. That's a danger. So you have to understand, by developing your TAT, WAT, SRT, GTO, फट्टा, बल्ली, GP, कोर क्वालिटी हाइड कर दो। फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, लोड दूसरों से उठाना, रस्से से हाथ काट लेना, हाइडिंग कोर क्वालिटी एज एडवाइज बाय सो मेनी ISO सर्टिफाइड कोचिंग सेंटर्स। Are you sure? Are you sure? Is this the way to improve your personality? ये मेरा आपसे सवाल है। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही तरीका है? आप मुझे पैसे दे रहे हो और मैं आपका TAT, WAT में बोलता हूँ ऐसे कर दो, वैसे कर दो। इज इट द राइट अप्रोच टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी? इज इट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इज इट पर्सनैलिटी मैनिपुलेशन? मुझे लिख के बताना फीडबैक। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में थोड़ा भी दम है, थोड़ा सवाल करो। मैं तो एक भंवर हूँ छोटा सा, लेकिन इस भंवर को तूफान बनाना तुम्हारा काम है। आई विल कीप डूइंग माई जॉब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे पास आओ ना आओ। आई विल कंटिन्यू मेकिंग दिस वीडियोज़ एंड आई विल कीप कंटिन्यूइंग टेलिंग यू द कंफर्टेबल ट्रुथ। बट ऑफिसर बनना है आपको, इस चूहे की चाल छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ोगे वो आपकी मर्जी है। आपको लगता है
कि इस एसएसबी के सामने मानसा वाचा कर्मना, क्या ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं डीएपीआर ट्रेन कि कीकर के पेड़ में कोचिंग वाले अगर आम बांध दे दशहरी और इन्हें लगेगा कीकर का पेड़ आम है? अगर ऐसा है, आप बेवकूफ़ हो और आपकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा मैं कोचिंग वाला उठा रहा हूँ, है ना? Is this the way to align your expectation? If you want 2 stars on the shoulder, you have to first give what they want you to give. You cannot get it before you give. You have to first give and meet their expectation. कीकर में पेड़ बांधना is not their expectation. वो डेड बॉडी को ड्रामा बनाने वाले कैंडिडेट को नहीं ले रहे, वो स्ट्रेस को डिनाई करने वाले नहीं ले रहे, स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने वाले ले रहे, वो गोबर को नहीं ले रहे, वो पिंग पोंग बॉल ढूंढ रहे। Are you गोबर? If you are गोबर, you will go for this training. That's why चांदी हो रही है हम लोग कोचिंग वालों की। डेड बॉडी का ड्रामा बना के हम नंबर 1 कोर क्वालिटी को अगर वीकनेस हो उसको हाइड कर दो, वीडियो में बोलते, बुक में लिखते हैं, चल रही है हमारा धंधा। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू रिमेन इन योर कंफर्ट जोन। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू लीव दैट अप्रोच, वरना ये नहीं चलने वाला। एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर गोबर and this is no way of aligning their expectation, and by doing this you should not get 2 stars on the shoulder। ये तो मैं बोल रहा हूँ, वो कर्नल साहब और वो दूसरे सर बोलते हैं कि कोर क्वालिटी हाइड कर दो अगर तुम्हारे में वीकनेस है। मैं बोलता हूँ कोर क्वालिटी अगर तुम्हारे में डेफिशिएंसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो पॉइंट गोइंग टू द एसएसबी, सेकंड यू शुड नॉट गेट रिकमेंडेड, थर्ड इवन इफ यू हाइड इट यू विल बी डिटेक्टेड। अरे कोर क्वालिटी में नहीं है, एंड फोर्थ एसएसबी हो या ना हो ये तुम्हें जीवन में भी तकलीफ देगा। व्हेन यू जॉइन एसएमएल का प्रोग्राम, एसएसबी के लिए तो तुम रेडी हो ही नहीं सकते बिकॉज दैट डेफिशिएंसी इज अ बिग डेफिशिएंसी, बट जीवन के लिए रेडी कर सकता हूँ क्योंकि उतना परिवर्तन तो ला सकते हैं। ये तुम साला आम बांधते कीकर के पेड़ में, ना वो एसएसबी के काम आएगा ना जीवन के काम आएगा, वो हमारे काम आएगा, हमको लक्ष्मी मिलेगी, तुझे साले आम बांध के छोड़ देंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। So this is not the training, है ना? This is completely not the training। ये चूहे को अंदर ही रख के आम बांध दिया जाता है। चूहा सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट बन गया। लगान मूवी का जो कचरा था, जो गुगली वाला कचरा, उसको साले को टीएटी डब्ल्यूएटी ठीक करने से क्या उसका लो सेल्फ एस्टीम ठीक हो जाता? जो लगान मूवी में लाखा था, लाखा, ही हैड लॉट स्ट्रॉन्ग फैक्टर टू प्रॉब्लम, सोशल अडेप्टेबिलिटी, है ना? ही वाज इन जेलस विथ अपना भुवन बिकॉज ऑफ गौरी के चक्कर में। क्या उसको टीएटी डब्ल्यूएटी ठीक करने से लाखा ठीक हो जाता? नो, लाखा की सोच को परिवर्तित करना था। तो ये जो कंफर्टिंग लाई है ना, ये जो चला रही है, जो कोर क्वालिटी हाइड करने वाला, ये साला ये तुम्हारा कीकर के पेड़ में आम बांधने का काम हो रहा है। तुम्हें अच्छा लगेगा बिकॉज वेरी वेरी कंफर्टिंग लाई। मेरी बात तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सच कड़वा होता है और गणेश बाबू तो सच बोलेगा। बाकी मेरे को तुम रिकमेंड हो ना हो वो मेरे हाथ में नहीं, वो तुम्हारे हाथ में। यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। तुम आओ मेरे पास, ना हो एसएमएल करो, एसएसबी करो, आई डोंट केयर, बट दिस इज द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल रिमेन ट्रुथ। सो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आर यू गेटिंग योर सेल्फ ट्रेंड इन कंफर्ट जोन? जो भी वीडियो आप फॉलो कर रहे हो, जो भी कोचिंग सेंटर आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, क्या वो टीएटी डब्ल्यूएटी तक सीमित है या आपके इन डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर रहा है? अगर कर रहा है बहुत अच्छा कोचिंग है वो, अगर नहीं कर रहा, आपके अंदर कीकर में आम बांध रहा। चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना किस कोचिंग सेंटर में आपके कीकर में आम बांधा जाता है, कहाँ से आपने बंधवाया और किस कोचिंग सेंटर में इन डेफिशिएंसी के ऊपर काम करता है। और मैं उन कोचिंग वाले सर से भी बोलता जो वीडियो में बोलते हैं अगर डेफिशिएंसी हो कोर क्वालिटी में उसको छुपा देना। क्या इज दिस द राइट वे टू ट्रेन द यंग बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी? आप जिस थाल में खाते उसी में छेद कर रहे हो। कोचिंग वाले सर नंबर 1 बोलते हो अपने आप को। सो आई एम आस्किंग यू द कैंडिडेट्स एंड द कोचिंग वाला सर, क्या कोर क्वालिटी को हाइड करके एसएसबी में जाकर रेकमेंड हो सकता है एक लड़का? और हो गया तो इज इट राइट? I don't know why are you teaching like this and you claim yourself you are the god of SSB and boss of SSB? Fraud of SSB। तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, बंदर को पकड़ते हैं अफ्रीका वाले कैसे, एक छोटा सा होल करते हैं नारियल में, उसके अंदर मूंगफली डाल देते हैं। बंदर क्या करता है, हाथ खोल के अंदर डालता है, अंदर जाके मूंगफली पकड़ लेता, फिस्ट बन जाता है और फिस्ट फिर बाहर नहीं निकलता। तुम भी उसी तरह से फंस गए हो और तुम्हारे कोचिंग वाले काट काट के तुम्हारा बंदर का मीट बना रहे। आपको इस मूंगफली को छोड़ना पड़ेगा, इस लालच को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है वो आपकी मर्जी है। सो आई वॉन्ट टू नो
जो लोग मेरे वीडियोस को देख के थोड़ा सा भी समझ में आ रहे हैं, व्हाट इज योर एक्शन प्लान? एक्शन प्लान का मतलब इस सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि में जाने का क्या एक्शन प्लान है? कैसे आप ये कोचिंग की मूंगफली को छोड़ने वाले हो? बिकॉज आपने मूंगफली नहीं छोड़ा तो उस चूहे की तरह इस ट्रैप में फंस जाओगे, और नहीं होगा तो आपके ब्रेन को साला कोचिंग वाला मैन्युपुलेट करके डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, फट्टा इज इक्वल ब्रिगेड करके गोबर से महागोबर बना दिया जाएगा। गोबर से महागोबर। इनफैक्ट पिंग पोंग को भी वो गोबर बनाए थे, बिकॉज वो सबको लेवल पे लेके आ जाते। दैट इज नॉट द वे यू हैव टू ट्रेन। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, आर यू ए गोबर इन लाइफ? लिख के बताना, आर यू ए गोबर इन लाइफ और आर यू ए पिंग पोंग इन लाइफ? अपने लाइफ के इवेंट्स को चेक करो। अगर गोबर हो, प्लीज मेक श्योर टीएटी मत ठीक करना, पहले खुद को ठीक कर लेना। कैसे ठीक करना है? उसके लिए आपको पिंग पोंग बनना है, तो आपको ये जो चूहा बैठ के खा रहा कंफर्ट जोन को, इसको छोड़ना पड़ेगा। एंड यू टू सेरेनिटी प्रेयर में तीन पहले वीडियो में दिया था, पिछले 3 पहले वाला जो वीडियो था, सेरेनिटी प्रेयर, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन चेंज, व्हाट आई कैन नॉट चेंज, ऑल दैट, है ना, उसको पढ़ना। एंड यू टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव फोकस टू प्रोएक्टिव फोकस। क्या मतलब है? सर्कल ऑफ कंसर्न को छोड़ के अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। कैसे करना है? उसके लिए आप एसएमएल प्रोग्राम में आ सकते हो। अगला एसएमएल का बैच जो है 1 वीक का स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से 12 सितंबर तक। साथ ही साथ AFOSUP का GTO बैच भी शुरू हो रहा है। इस अभी जो करंट बैच है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वीक, नेक्स्ट बैच इज GTO। तो आप उसमें भी अगर आपको आना है तो वो उसका भी 1 वीक जो है 7 सितंबर टू 12 सितंबर तक होने वाला है। और उसके लिए आपको अगर रजिस्टर करना है, यू हैव टू रजिस्टर एट 8275577650। एक इंफॉर्मेशन मैंने इसमें स्लाइड में नहीं डाला। 12th के बाद 12th इज सैटरडे, 13th इज संडे, 14th इज मंडे। सो 14th ऑनवर्ड जो मंडे टू सैटरडे बैच है, दैट आई विल नॉट बी कंडक्टिंग। आई विल बी टेकिंग अ 1 वीक ब्रेक फॉर सम पर्सनल रीजन। तो उसके कारण जो बैच है, दैट इज 12th इज सैटरडे, 13th will be Sunday, 14th onwards, 14th is Monday, 14th Monday से लेके उस वीक का सैटरडे तक जो 1 वीक है, I will not be having any online classes for my personal reasons. So those who wish to join, you can join 1 week batch right now at this coming Monday के लिए. So it is starting from 7th September to 12th September. SML का भी 1 वीक है, which you can extend to 2nd week subsequently, and AFOSUP का GTO का 1 week. इसका fees details and all that you will get it once you send me a WhatsApp message. So hope to see you there, and वहाँ पे आपको बताएंगे कि इस चूहे का बॉटल को कैसे छोड़ना and how to shift from circle of concern to circle of influence. And just to for the sake of feedback, मैं कुछ लड़के लड़कियों के नंबर बताऊंगा, लड़कियों के नहीं लड़कों का, SML के ऊपर आपको कैसे उनको ये मदद किया। सात्विक दास, ही इज फ्रॉम अगरपुला त्रिपुरा, वो SSB एस्पिरेंट भी है। ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू बोथ द कॉम्पोजिट बैच, AFOSUP का एज वेल एज SML का। तो सात्विक दास से पूछना, एंड उसका मोबाइल नंबर भी नीचे दिया हुआ है 8489661272। ही इज गोइंग फॉर TGC एंड शॉर्ट सर्विस टेक्निकल एंड TGC के लिए। तो सात्विक दास को पूछना कि कैसे उसको SML इज हेल्पिंग हिम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, एंड कैसे वो सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि में शिफ्ट करने में मदद मिल रहा है, एंड हाउ इज परसेप्शन वो द SSB इज चेंजिंग, है ना। मेरा वो जो research था, it was perception management of candidates for improved selection. Similarly, JJ Lobo is from Bangalore. He is a non-SSB candidate. He is a professional, working professional. So many working professionals are like this rabbit. They are trapped. Some of them are trapped in IT. Some of them are, they may be well paying, but it's a trap and it's a cycle. इस cycle को तोड़ना है तो JJ Lobo से बात करना. Those people are working professionals, and जरूर उससे बात करके आप, you can contact me if you wish to join the सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का 2 weeks प्रोग्राम. 500% क्लैरिटी अबाउट यू एंड अबाउट लाइफ एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. 500%. अब तो आपको विश्वास हो रहा होगा बार बार, ये तो फ्री के हैं यार. बच्चे तो ट्रेलर देख के रेकमेंड हो रहे हैं SSB से, बिना मेरे पास आए, ट्रेलर देख के. तो ट्रेलर इतना पावरफुल है, तो ट्रेलर के पीछे क्या होगा जो एक्चुअल मूवी. सो hope you understand. Next is R Nandakumar. He is from Tanjore, Tamil Nadu. His mobile number is 8778939170. इनसे बात करिए और चेक करो. आई थिंक ही हैज़ गॉन टू सम कोचिंग, बड़ा हाई फाई कोचिंग. बात करना क्या हुआ इसके साथ. नेक्स्ट इज अंकित मिश्रा. ही इज़ फ्रॉम UP. हिज मोबाइल नंबर इज 7983172818. इनसे अंकित से भी बात करना. lot of self realization, lot of understanding कि यार क्या हो रहा है and all that. So आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. So hope to see you there for 1 week, and subsequently you can increase it to another week.
एंड उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन था कि TS44 का TS कोर्स 44 उसका नोटिफिकेशन इज ओपन. द लास्ट डेट टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय 10+2 TS बॉयज़ जो जिन लोगों PCN में किया हुआ है. इट इज़ 9th of September and then 11th of September at 6:30 PM onwards we are conducting a free webinar. And in order to register you have to fill a Google form जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. And you can contact on these two number 8086086444 or 8714385662. It will be a big mega event. काफ़ी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो जो लोग इसमें अटेंड करना चाहते हैं गूगल फॉर्म भरो और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा लो. काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल बेनिफिट. एंड आई होप दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू. और मुझे बताना कि क्या आर यू ऑल्सो ट्रैप्ड इन कम्फर्ट जोन. वो जो 2 चूहे बताए थे उसका वो उससे जो मैं कहना चाहता था वो समझ में आ गया. और चेक करना आपके SSB क्या कंफर्ट जोन के अंदर किया जा रहा है या उससे बाहर. और AFSOP वीडियोस, हाउ दीज वीडियोस आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वीडियोस एंड अदर ट्रेनिंग. मुझे ये ज़रूर बताना और उन बच्चों से बात करके मुझे एक फीडबैक भी बताना कि उससे क्या फ़ायदा मिला आपको. एंड आई होप these videos are bringing clarity and certain degree of pressure in you to perform and upgrade yourself. TAT डेवलप करने से आप डेवलप नहीं होगे. आप डेवलप होगा तो आपका TAT ऑटोमेटिकली डेवलप होगा. आई होप माई आर्ग्यूमेंट्स आर अंडरस्टूड बाय यू. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी